Tripura University first semester rung surungnai khoroksa Tripura juk bini professor by rumprek saprek khaijaka professor ni mungongkha Bhupesh Debarma Department of Philosophy thako koktomana khanagoi TISM ni atongrok justice sankatai ABB ni atongrok bo aitangrok Tripura national बोल रहे हैं ना बहन बोल रहे डायरेक्ट ठीक है। बच्चा बीमार है, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको अस्पताल भेज के उसका पहले इलाज कराना है, उसको ठीक करना है, उसके बाद में हम सब हैं उसके साथ। सर इसके साथ और एक बात है, ये बच्चा हेरेस्ट हुआ है सर। बिल्कुल हुआ है, ठीक है, ये भी इंक्लूड कीजिए सर। उसके लिए ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर परारी है, मोबाइल सिस्टम है परारी है, मोबाइल सिस्टम है वाला पता नहीं। आप जाओ अनामिक आप जाओ फोर्थ सेमेस्टर मास्टर डिग्री সোশিওলজি ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে আপনারা কি আশ্বাস পেয়েছেন কথা বলে? ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে আশ্বাস পাওয়ার আশায় আমরা গিয়েছিলাম, আমরা অথরিটির কাছে কমপ্লেনও করেছিলাম। ওই কমপ্লেনের পরেই যখন ওনাকে ডাকানো হচ্ছিল যে আসবেন, উনি আসবেন, আসার পরে ওনার সঙ্গে ফেস টু ফেস কথা হবে, ওই তখনই মেয়েটা মানে পুরা দিন তো কান্না করছিল, ও সেন্সলেস হয়ে গেছে, ও শার্ট বন্ধ হয়ে গেছে আর টেনশনে। উনি কি এসেছিলেন? উনি তো আসেনি, আমরা এখনো ওনাকে দেখিনি। এখন আপনারা কি পরবর্তী যতক্ষণ পর্যন্ত জাস্টিস না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যার্থী পরিষদ সঙ্গে থাকবে এবং এর প্রতিবাদ করবে। আর ওর মা এসেছে, আইনি ব্যবস্থা ওর মা আছে আমাদের সঙ্গে, আমরা ওনার সঙ্গে, উনি বলছেন যে আইনি ব্যবস্থা উনি নেবেন। এই ধরনের ঘটনা কি পূর্বে ইউনিভার্সিটিতে আর হয়েছে? পূর্বে এখন কি করে বলবো, ফার্স্ট টাইম হচ্ছে কি, এখন তো এই মেয়েটা সাহস করে সামনে এসছে, মেয়েটা সাহস করে সামনে এসছে বলেই আমরা প্রতিবাদ করছি। আগে যদি হতো বা আমাদের কাছে এরকম আসলে আমরা তখনও প্রতিবাদ করতাম, এবং আগামী দিনেও যদি এরকম কোনো মেয়েদের সঙ্গে হয়, আমি মেসেজটা দিতে যাচ্ছি সমস্ত স্টুডেন্ট যে আছে আমাদের সবাইকে, আমি মেসেজটা দিতে যাচ্ছি কোনো বোনের সঙ্গেও যদি এরকম হয় তোমরা অতি সত্বর আমাদের কাছে আসো, বা যে কোনো স্টুডেন্টের সঙ্গে শেয়ার করে বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের কাছে আসো। আমরা লাস্ট টাইম পর্যন্ত জাস্টিস না যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ আমরা পাশে থাকবো, আর আমরা থাকবোই। অথরিটি কিছু করতে পারবে না, ভালো করে পড়াশোনা করে কেউ কাউকে ফিল করাতে পারে না, এটা একটা ভয়, এটা একটা ভয়। ঘটনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে যখন আইছে তখন আমরা শুনতে পাইছি যে মেয়েরা রেইকে দুপুরবেলা বাইবা টেস্ট নেওয়ার নাম করে সেটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে, তো মেয়েরা ওর বান্ধবীর কাছে কইছে, তো বান্ধবী বিদ্যার্থী পরিষদের একজন কার্যকর্তারে কল করার পরে আমরা সবাই গেলাম বলতে আমরা যারা ক্যাম্পাসে আসছিলাম, ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির, আমরা সবাই গেছি। গিয়ে সেরে আমরা বিসি স্যারের কাছে গেছি, ওরে নিয়ে আসলে যে স্যার এরকম ব্যাপার, একজন স্যার তো তারা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করছে এক্সামের নাম করে, আবার আজকে রাত্রে একটা সময় ফোনও করতে কইছে, এটা কি করা? তাই নিয়ে কইছে যে আমরা তাইনে ডাকতেছি, তাই নিয়ে আয়ও কাইলে করে কথা হয়েছে। ওই আধ ঘন্টা টাইম দিচ্ছে, আধ ঘন্টার মধ্যে তো তাই নিয়ে আইলেনি না, 1 ঘন্টা সময় গেছে গা। আর ওই মেয়েটারে তো স্যার তারা দুজন একটু জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, হয়তো বা ওই জিনিসটি নিয়ে ভাবতেছে, টেনশন করতেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েরা সেন্সেস করে ওর শার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে ওরে আমরা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে নেওয়া হয়েছে, ইউনিভার্সিটি থেকে রেফার করছে, এখন হাসানিয়া হসপিটালে আসছে। তো মেয়েরা যতটুকু বলছে যে হ্যারাসমেন্ট হয়েছে, তার মধ্যে তার ডিপার্টমেন্টের এইচওডিও, কোন ডিপার্টমেন্টের সে? সোশিওলজি। আজকে কি পরীক্ষা ছিল তার? আজকে ফিলোসফি ইলেকট্রিক পেপারের ভাইবা আছে। আচ্ছা, তার সঙ্গে কি করা, মানে কি করা হয়েছে? তারে ভাইবা টেস্টের নাম করে রুমে ডাকানো হয়েছে, ভাইবা টেস্টের কোশ্চেন না করে আজেবাজে কোশ্চেন, সেক্সুয়াল কোশ্চেন, বডি নিয়ে কোশ্চেন, এইসব কোশ্চেন করা হয়েছে। আর কোয়া হয়েছে যে এই জিনিসটি সিক্রেট রাখতে, ফোন করতে রাত্রেবেলা। যিনি করছে এখন ওনার সিচুয়েশন কিরকম? স্টুডেন্টের সিচুয়েশন এখন খুবই ক্রিটিক্যাল, যার কারণে ইউনিভার্সিটি অক্সিজেন লাগানো আছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হইতেছে, অক্সিজেন লাগাই আমরা আনছি, কারণ ওয়ানের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে রেফার লেখতে করেই আমরা নিয়ে আসছি।
এখন এবিপিপির তরফ থেকে আপনারা কি চাইছেন? এবিপির তরফ থেকে আমরা এটা জাস্টিস লাগে, কারণ ওই স্যার যাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নাই দেখতে পাচ্ছি। সাইনে থাকলে আজকে একটা মেয়ের সঙ্গে করছে, কালকে আরেকটার সঙ্গে। এর প্রতিবাদ করার মতো সাহস রাখছে, হে করছে। আগামী দিন কোনো মেয়ে যদি না করে, তো এই টিচারই যাতে না থাকে, এটাই আমরা অথরিটির কাছে ইয়ে থাকবো। আর যতক্ষণ না এটা জাস্টিস হইতেছে ততক্ষণ এবিপির কাছে। আপনারা কি আইনের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেবেন? হ্যাঁ, ওর মা নিজেই আইছে, আর আমরা ওর মা গার্জিয়ানের সঙ্গে আসি, আর তাই নিজেই কইতেছে যে আইনের ব্যবস্থা নিব। স্যারের নাম কি? ভূপেশ দেবন, তাই কি দায়িত্বে আছে? असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ और अभी आप लोग क्या जो प्रशासन है उसके बारे में होगा? वो तो बेटी ही जानेगी ना, बेटी के साथ में हुआ तो वो ही जवाब देगी। इस विषय में आप लोग थाने में जाएंगे, मामला वगैरह कुछ? आपको कॉल करके क्या बोला था? मैंने तो वो बोला था जब ऐसी गलत हो रही है तो सीधे पुलिस केस करो या तो ये करो। तो अभी आप लोग पुलिस केस करेंगे? एक बार तो करना चाहिए, इन्फॉर्म तो करना चाहिए। बिना इन्फॉर्म करने के बाद तो ऐसी डिटेल ये हो जाएगा ना फिर। उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ है क्या, या ऐसे नहीं पहली बार हुई है त्रिपुरा में, ऐसी पहली बार हुई। हम लोग पहले दिल्ली गए थे तो अभी यहाँ पर किस पे आया? कोई सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं? उसका पापा नहीं है तो उसकी जगह में नौकरी किया है। क्या क्या नौकरी करते हैं? क्या नौकरी करते हैं? ऐसी इंडस्ट्री में मिला है। एक लड़की के साथ, स्टूडेंट के साथ बाजी टोनिंग और बाजी व्यवहार, उसके बारे में आपके क्या कहना है? अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए। तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो उसने कुछ बताया कि उसके साथ में कुछ किसी टीचर ने कोई बात किया है। तो हमने कंसर्न टीचर को, उनके HOD को तुरंत बुलाया और इमीडिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए, प्रोफेसर साहब शहर से। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे, बच्ची की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना, कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्ज़ाम था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया, उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं। और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज़ पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। एंड VC सर हैज़ पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर and he will personally see to it that nothing wrong can happen with any of our students. We are committed, we are guardian of this to each and every student of the university. जो प्रोफेसर है उसके साथ आपका बात हुआ क्या? अभी उनसे बात नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते हैं, तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए। हम खुद आए, मैडम जो उनके HOD मैम हैं वो खुद आई हैं, और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के DN स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ हैं। तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है, और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए, तो एज़ पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे। और मीडिया को बोलने से आप लोग मना किया था, क्या यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटालाबाजी चल रहा है? नहीं, मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया। जो भी आए, हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें, उसके बाद मीडिया से भी बात करें। मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मनाही नहीं हुआ। मीडिया से तो हम खुद जो है ना, यदि अच्छी बात है हमारा। लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या? लड़की बहुत घबराई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी, पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया। तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो, पता चले सच क्या है। जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते। कितनी देर बातचीत हुआ आपने लड़की के साथ? लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी। जैसे ही लगा कि हाँ कुछ बात है, तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया। प्रोफेसर साहब शहर में रहते हैं, आने में उनको 15-20 मिनट का समय लगा। वो जैसे ही आए, बच्ची की तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी। सर इंसिडेंट दोपहर को हुआ था सर? नहीं, बच्ची ने हमें अभी इसी वक्त बताया। दोपहर को वो बोल रही है कि वो अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, बट अथॉरिटीज़ को अभी पता चला। वाइस चांसलर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाया, हम भी वहाँ थे, और HOD मैम ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश की। और वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बहुत वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो, मैम हमारे साथ हैं, और मैम पर्सनली देख रही हैं कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो मैं आपके माध्यम से
एश्योर करना चाहता हूँ कि कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा और वाइस चांसलर साहब ने कमिटमेंट दिया है कि किसी की भी गलती होगी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और जो भी एज़ पर रूल प्रोसीजर होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि आईसीसी का केस होता है, कोई भी बात हो वो आईसीसी में जाएगी और हम इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट अभी कम से कम हमें बच्ची से पता तो चले हुआ क्या है। अभी तो वो समझाने के जैसे ही बात करते हैं वो घबराने लगती है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तो जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे।